Hello everyone. This side Jitendra Chaudhary from IPM College. I am working as an assistant professor over here. So today I am here to present a presentation on research methodology, how the construction of questionnaire in research is happened. So what are the characteristics of good questionnaire, what are the types of questionnaire, which kind of features must have a questionnaire. So before moving ahead, first understand what is questionnaire. So questionnaire is a nothing, it's a tool which is used for the research. And when you are doing a qualitative or quantitative research, we need some questions from the audience to answer that particular questions. So it's a kind of a tools or instrument which have some set of question purpose of what in the regard of in which context they want to answer the questionnaires. So first we understand what is how the questionnaire is applied and how the questionnaire is set for the any kind of research. So list of question that answer by the people. A questionnaire is used to collect the information basically about the particular subject. Your subject may be for your management, for your science background, for your commerce background, history, polity, economy, anywhere, because research has a wider range. It may be happen to any kind of area. So the basic concept in the questionnaire is it must be very concise, particular and information oriented होना चाहिए क्वेश्चनियर को. सपोज ओवर हियर एक आपको एग्जांपल आपके सामने है. सपोज वी आर यूजिंग द आईसीटी एप्लीकेशन. सो इट इज़ रिलेटेड टू योर स्कूल स्टूडेंट्स, ताकि जो स्कूल स्टूडेंट हैं दे विल अंडरस्टैंड how the ICT application is apply. So we can ask question from them to say about how they are using and what are the things they are doing, right? If we want to see the dietary patterns, so regarding the science, if it may be construct the options and the diabetic persons, or suppose we are motive behind exercise for an individual, if you are applying for that. So basically it may be exercising individual, right? सो पर्सनैलिटी ट्रेंड में भी हम क्वेश्चंस अपने लगा सकते हैं, राइट? सो ये हमारे पास कुछ हैं जो कि सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके रिगार्डिंग हमें ये पूछना होता है कैसे हम उनको कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से हम यूज कर सकते हैं, राइट? So basically, a set of questions designed to generate the statistical information for a specific demographic needs to accomplish the research objective. Whatever the research objective you have already discussed in your research, तो उसी को फुलफिल करने के लिए हमें क्वेश्चनियर बनाने पड़ते हैं, राइट? The questionnaire is a basically research tool consisting a series of questions, right? It may contain the facts, it may contain the statistical data, it may contain the topic, it may contain the any kind of information regarding the research, right? Now we next. So, what is the purpose of questionnaire? So, these are the purpose which we understand were the basic purpose of research questionnaire is to the primary purpose of question is to exact data, how the extract the data from the respondent. जो हमारा respondent है उससे हम data कैसे collect करेंगे through in the form of interview, in the form of opinion, in the form of questionnaire, right? It is an basically इनएक्सपेंसिव है थोड़ा सा वे टू गैदर डाटा फ्रॉम द पोटेंशियली लार्ज नंबर, ठीक है ना? रिस्पोंडेंट से लेना, मेल के थ्रू लेना, ईमेल के थ्रू लेना, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू लेना, ये हम उनसे डाटा जो है जनरेट कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? आपके पास डाटा आता रहता है, आप उसको कलेक्ट करते रहते हैं, फिर आप फर्दर अपनी स्टडी में इसको यूज़ करते हैं. अच्छा, अब हमें इसमें ये देखना है कि जो क्वेश्चनियर बनाया गया है
उसमें आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, गैदरिंग जो होना चाहिए प्रोसेस होता है उसको हमें मैच करना है। ये नहीं कि आपने जो सीक्वेंसिंग है क्वेश्चन की वो आपने ख़राब कर दी है, आपको जो टॉपिक है उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप आपका टॉपिक कुछ और है, क्वेश्चनियर कुछ और चल रहे हैं। तो ऐसे के लिए अगर आपका क्वेश्चनियर बन गया है, अच्छा एक क्वेश्चनियर होगा और आप टाइम पे रिस्पोंडेंट उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, राइट? And next, when we move further, so what are the elements of questionnaire? So if you are asking any kind of questionnaire, it may be related to any personality as eating habits, motive behind the exercise, or teacher questionnaire on the use of the ICT. These are the example how we can you know द फर्स्ट इज टाइटल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपको जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छे से हमको बताना है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करके रखना है कि भाई मेरा ये टाइटल है, मेरे जो क्वेश्चनियर होंगे वो इस टॉपिक पे होंगे, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको फिर उसमें क्वेश्चंस डालने भी हैं। ये नहीं है कि आप अपने टॉपिक से हट के क्वेश्चनियर डाल रहे हैं। तो it should be very clear and precise, and this help to identify the domain of the investigation. The respondent is initially get the oriented the investigation, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन हमें उससे करानी है वो अटेंशनली उसको आपको आंसर करे, ये होना चाहिए क्वेश्चनियर में। आप एक क्वेश्चनियर में जनरल इंट्रोडक्शन भी देंगे कि ये जो क्वेश्चनियर है मैंने इस पर्पस से बनाया गया है, ये इसकी रिसर्च है, इसके लिए मुझे बनाना है। और आपको इसके साथ साथ में अपनी रिसर्च से ऑनेस्ट भी रहना है, कि ये नहीं कि आप डाइवर्ट करके क्वेश्चंस उनको दे रहे हैं, डाइवर्ट करके आप उनसे क्वेश्चनियर फिल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू एक्सेस द एक्सप्लोजर दैट एग्जिस्ट राइट इन योर एक्टिविटीज़, कनेक्शन होना चाहिए पॉपुलेशन के साथ, साथ साथ में कंटिन्यूएशन होना चाहिए, इन्वायरमेंटल वर्क से रिलेटेड इशू होने चाहिए आपके, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट वहाँ पर होनी चाहिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि भाई इसको आपको जैसे भी रिस्पॉन्स देना है उस तरीके से वो स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चनियर में सेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आप मल्टी चॉइस दे रहे हैं, दूसरा आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाता है, तीसरे में कुछ और आ जाता है। तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, रिस्पोंडेंट को आपको बताना है, राइट? अब क्वेश्चनियर्स में जो भी आपके आइटम्स हैं, जो भी शेड्यूल्स आइटम हैं, उनको क्लियरली वहाँ पे बताना है, क्लियरली उनको सब पार्ट में डिवाइड भी करना है। ये नहीं कि एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चनियर चल रहे हैं, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है, जो कि आप प्रॉमिस करेंगे उनको कि कॉपी ऑफ समरी और फाइनल रिपोर्ट जो है रिस्पोंडेंट को भेजी जाए, लास्ट में जब क्वेश्चनियर बन जाएगा तो उनको भेज देंगे हम। साथ साथ में एक क्वेश्चनियर में आप थैंक यू नोट भी रखेंगे, ठीक है? ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके किसी भी एक अच्छे क्वेश्चनियर के लिए। तो पहला है, इट डील विद इम्पोर्टेंस इन द सिग्निफिकेंट टॉपिक। आपको टॉपिक क्लियर रखना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करनी है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इनोवेशन लाना है, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस क्लियरली होनी चाहिए, और आपके साथ साथ में जो है लेटर्स का भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें इट सीक्स ओनली द डाटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिसर्च लाइक बुक्स, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑल्सो। इट इज़ अ शॉर्ट पॉसिबल, बहुत ही शॉर्ट रखना है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं रखने, नंबर्स हमें ज़्यादा नहीं देने हैं कि एक बंदा ही बोर हो जाए भरते भरते, उसको आधा घंटा पौना घंटा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन यार हमें नहीं बनाने हैं, ठीक है? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना? अपीयरेंस उनकी अच्छी होनी चाहिए, अरेंज अच्छे से होनी चाहिए, जो सीक्वेंस चल रहा है आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपको क्वेश्चन बनाने हैं, और जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ साथ में डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन होना चाहिए, और आपको एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कि फेमिलियर हो सबके लिए। भारी भरकम वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने, बिकॉज वी डोंट नो द रिस्पोंडेंट, उनके पास इतनी है कैपेबिलिटी अंडरस्टैंड करने की कि नहीं है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन यार बहुत ही क्लियर रखना है, साथ साथ में आप उनको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखेंगे विथ नो क्लूज, हिंट और सजेशन भी देंगे आप साथ साथ में। क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन दी ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो पहले आप बहुत ही
छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आप थोड़ा मॉडरेट होते फिर हाई लेवल पे कॉम्प्लेक्स की साइड जाएंगे। ऐसे नहीं है कि छूटते ही पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया, है ना। तो आपको जो क्वेश्चन यार बनाने हैं वो बहुत ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ठीक है। साथ साथ में डबल बैरल क्वेश्चंस और पुटिंग टू क्वेश्चन इन वन क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछो, एक ही क्वेश्चन में आप दो दो तीन तीन क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। कोशिश हम ये करेंगे, एक अच्छे क्वेश्चनियर की ये होती है कि आप एक क्वेश्चन में एक ही बात करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ टाइप हैं, ठीक है। आप चाहे रिसर्च कोई सी भी कर रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो, उसमें आपको इन्हीं तीन का आपको जो है सेग्रीगेशन करके आपको इन्हीं तीन में से आपको कोई ना कोई एक चूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली है आपका तीन टाइप के आपके क्वेश्चनियर होते हैं। फर्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर इज बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चनियर जहाँ पर रिस्पोंडेंट को पूरी फ्रीडम है, ठीक है। जहाँ पर उसको पूरी फ्रीडम है कि उसको जो भी रिस्पॉन्स करना है वो कर सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर है, फिर आपके सेमी जो है मिक्स वाले हैं। तो जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होते हैं वो बेसिकली अगर आप इफ़ यू आर डूइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्च तो इट विल बी हेल्पफुल। तो क्योंकि यहाँ पर हमें सजेशन लेने हैं, इफ यू आर solving a problem where the suggestion and the improvement can make the solution that particular problem, तो आप उनमें ऐसे क्वेश्चन यार डाल सकते हैं ओपन एंडेड जहाँ पर आप लोगों के सजेशन ले सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ डाल सकते हैं आप। दूसरा है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन यार, यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन यार दिए जाते हैं ये क्वांटिटेटिव अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। मिक्स में क्या है कि आपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपने ओपन एंडेड के डाल दिए हैं, कुछ आपने क्लोज एंडेड के डाल दिए। जब दोनों का मिक्सचर आप कर देते हैं तो आपके मिक्स्ड जो है क्वेश्चनियर बन जाते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ओपन एंडेड की बात अगर हम करते हैं, तो बेसिकली इसमें हमारे फोर टाइप होते हैं। फोर में से जो मैं आपको जो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होते हैं इसमें जो रिस्पोंडेंट है फ्रीडम है इसको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। नो कैपिंग है, ठीक है। अवॉइड बायसनेस होती है इसमें, बिल्कुल जिसको जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। स्कोप जो है इसका मोर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और ये डाटा इसमें जो यूज किया जाता है वो क्वालिटेटिव डाटा यूज किया जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है, थोड़े से मतलब इसको थोड़ा एनालाइज करने में, टूल्स लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चनियर ही सजेस्ट करेंगे और उसी बेसिस पे आप अपनी रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो ओपन एंडेड इज क्वेश्चंस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन द फ्री फ्लोइंग मैनर। दीज क्वेश्चंस don't have predetermined set of responses and the respondent is free to answer whatever he she feel। उसको जो भी अच्छा लगता है उसके सामने जो क्वेश्चन यार आएगा उस बेसिस पे वो अपना जो है आंसर कर सकता है। इट कैन हेल्प टू गेट ट्रू, इंसाइटफुल एंड द इवन अनएक्सपेक्टेड सजेशन। And this questionnaire is basically for your qualitative research. An ideal questionnaire would include an open-ended questionnaire at the end of the questionnaire that may be in the form of your feedback, in the form of your suggestion or the improvement, right? सो इसमें हमारा फर्स्ट है कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, जहाँ पर पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। कुछ भी कुछ भी रैंडमली उसके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी रैंडमली हम उससे पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एक एग्जांपल लिया, आप देखो इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये पूछना क्या चाहता है। सच क्वेश्चन यार आर आस्क्ड ओपनली टू गेट ओपिनियन व्यू अबाउट द एस्पेक्ट। जैसे इसने पूछा सजेस्ट योर ओपिनियन टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल इन इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टेट योर ओपिनियन अबाउट द स्पोर्ट पॉलिसी अमेंडेड बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा है, बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर है, ना हमें टॉपिक का पता है, हम बस सजेशन ले रहे हैं कि इस रिगार्ड में। देखो पहला उसने जो एग्जांपल दिया है हेल्थ के लिए, दूसरा उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिया है, फिर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट